then I opened prospectus and I realized there are college of homeopathy. By that time, I was seeing 30 patients every Sunday. In 10th standard and 11th standard, I was practicing, helping a lot of people in neighborhood. And I thought homeopathy is practiced by seeing boy. I went to college and it was so much shock to me that 80% students were very clear that they are going to practice allopathy. They are here to take that degree of doctor. This is reality. No one could tell. But किसी ने चख लिया है तो वो तो पागल ही है. फिर वो घूमते रहेगा, ढूंढते रहेगा. And this is how we started our journey into homeopathy. My mother then, how very interesting thing happened. This recurrent fever started, and she started getting 105 one day. So, whole family was tensed. But she went on feeling good. Every time she went on saying, I am feeling good, and I trust this lay homeopath. One of the fevers, she started talking her friends from her childhood, Brahma, and so many names we never knew. So I asked my Nana after going to Baroda, who are these people? She said, all the childhood friends of your mother. What happened in childhood? Somewhere in 9th or 10th, she developed severe malaria. Those days it was crude quinine which was used with arsenic, crude form. And she was on ice for 8-10 days with no hope for her survival. She somehow survived, and then when she went for SSC exam, she had headache. Now, it's a very interesting thing. One periodic thing has gone into another periodic experience of migraine. Total 3 period, again episode comes high. And now you see when she was being treated, she developed this fever again. And at very young age, I have witnessed this phenomenon. This phenomenon which we take long time to see in college. Sometimes there are no patients in OPD. I always say that first see patient. जाओ patient को मदद करने चले जाओ. बोलो. आप नहीं तो आप किसी के पास लेके जाओ. लेकिन help someone. In the process of helping, you will be learning. कोई होम्योपैथी जानता है उसके पास लेके जाओ, आप नहीं जानते हो. आप जहां तक क्योर कर सके ठीक है, उससे आगे लेके जाओ, उससे आगे लेके जाओ. And that is how homeopathy is built. There is no other way. I know. और उस करते 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 I realized, is there anything what Hahnemann, every statement he has said has some meaning. Every aphorism. आज मैनेजमेंट, आज आप जाओ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में, वहां क्या लिखा रहता है? Mission statement, vision statement. You go to all corporate office, and this is happening since last 20 years. And I say this has happened in homeopathy 250 years back. This man has written vision, mission, an operational manual called Organon. Chapter by chapter, all his experiences are studied. Or when specifically now I am working on a psychiatric case. And I never ever have understood 210 to 230 aphorisms before. Every statement which he has said has been through experience, no theory. An experience is formed into an offering. प्रैक्टिस में कंटिन्यूसली उसको बाइबल के जैसा रखना चाहिए, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस था. There can be, if he would have survived, he would have written 500 more aphorisms. It's not end book, because he himself has changed 6 times. You cannot be frenetic and say what Hahnemann said was the last word. No, sir. The spirit of Hahnemann is important. And that spirit is very, very important. What he has done, which I very strongly feel, and has helped everyone. I went to some morning to Gandhi Samadhi. What is common between Gandhi and Hahnemann? I went to Baba Ahmed's place Samadhi. What is common between all of these 3 people? Everything happened later. First is search for truth. All the 3. And what they have done? They have stopped doing wrong.
because to me very clear, you will not get truth. Truth is there, you are not able to see. It's like a diamond. ढूंढने का नहीं रहते, उसके ऊपर कचरा है, उसको साफ करने का. It will come to you. प्रगटता है, उसको ढूंढना नहीं रहता है, वो तो है, सनातन है. सिर्फ गलत बंद करो, गलत बंद करो, सत्य होता है. और गलत क्या है मुझे समझता है, तुम्हें समझता है, बंद नहीं होता है. और उसके लिए करेक्ट चाहिए, उसके लिए वो स्पिरिट चाहिए. तो गलत छोड़ा. एमडी उस जमाने में था, छोड़ दिया. बच्चे लोग भूखे भी थे, खाने को भी प्रॉब्लम था. ड्राई ब्रेड मिलते थे और पोटैटो से साफ करते थे कपड़े. एमडी ऑफ दोज डेज. So paisa was never a question. The conviction was important. जो फायर सर के स्पीच में. छोड़ना गलत, बस सही आएगा. केयर करते जाओ, छोड़ते जाओ गलत, सही होते जाता है. और ये जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने एक्सपीरियंस किया है, I'd like to share with you. There are seminars where 100 cases I have in my laptop. I can show you in 10 minutes. ये पेशेंट आया, ये दवा दिया, ये पेशेंट आया. I'm not interested. I might show you only 2 or 3 cases, but I will unfold the secret of success. What I have learned from my teachers, what I have learned from my practice. I'll show you how my students are learning, how I am learning through care of my patient. Because it's never a teaching system, it's a learning system. Homeopathy cannot be taught. It is always learned. Learn through doing things. What you correct felt right today, ये करके देखा, नहीं रिजल्ट आया, छोड़ा, और करके देखे. और सब इंडिकेटर्स है, गाइड्स आर देयर. Kent's 12 observations आज भी उतना ही बेनमून है. प्रैक्टिस में it will help you to reach to the truth of that patient's cure. और वो देखना, वो ऑब्जर्व करना, और वो सत्य का सामना करना. सत्य का सामना. पेशेंट आके बोलेगा आई एम नॉट बेटर. नहीं, आपका वो तो ठीक है, ये तो ठीक है, सब कुछ ठीक है. वी आर ट्राइंग टू प्रूव वो नहीं ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है. कैन वी बी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ? मेरे पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, स्टेटेड इन ऑर्गेनॉन. तो कुछ है होम्योपैथी जो मुझे नहीं मालूम है. और ये होम्योपैथी से हमें कनेक्ट करना है. एंड इफ यू ट्राई टू कनेक्ट दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. Every means I have a patient since 12 years not better. I'm asking that question, why she comes to me still? Probably she sees that in my eye or in my care that this man is going to find something for me. और वो ढूंढ रहा है मेरे लिए कुछ. यहाँ मुझे कोई क्लेम नहीं करना है कि मैंने ये ठीक किया, वो ठीक किया. तुझे ठीक किया, तेरा कॉमन कोल्ड ठीक नहीं हुआ. कैंसर का तो बहुत सारा लिस्ट है जो लोग ठीक हो गए. इधर से आए, नागपुर से आए, उधर से आए, इधर से आए, सब बहुत लोग ठीक होके गए. लेकिन मेरा पड़ोसी है जिसका सर्दी नहीं जा रहा है. सच का सामना. मेरे फैमिली मेंबर्स ठीक नहीं हो रहे, सच का सामना. होम्योपैथी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं. मैं सिर्फ सच का सामना करता हूं तो मुझे सब दिखाई देगा धीरे धीरे. Are you with me? Yes. Are we going to travel in this for a moment? And we will give tribute to him. We will give tribute to Sir, who is giving their lives to him. And this spirit, सच ऐसा होता है ना, उसका कुछ होम्योपैथी का झंडा गाड़ने से कुछ नहीं होगा. बहुत लोग बोलते होम्योपैथी बचा, बोला सॉरी अपने आप को बचा. जिसका ट्रूथ है उसको तुम क्या बचाने वाले हैं? खाली होम्योपैथी से 4 लोगों को ठीक करो ना, होम्योपैथी बच गया. कोई झंडा लेके जाने की जरूरत नहीं. जिसको जो करना है करे, एलोपैथी करे, शीर्षासन करे. लेकिन क्या जो होम्योपैथ ठेका लेके बैठे कि हम होम्योपैथी करेंगे, उसका एक स्पिरिट रहता है. और वो स्पिरिट खाली चालू रखो, जलाए रखो. और सच ना है आपके पास तो मैं हार जाऊं.
एक केस छोटा सा ऐसा धाड़ करके खुलता है ना, लाइटनिंग जैसा एक्सपीरियंस आता है, अरे कैसे हो गया है, और ये एक केस में हुआ तो दूसरे केस में क्यों नहीं, तीसरे केस में क्यों नहीं, चौथे में क्यों नहीं, इस कंडीशन में क्यों नहीं, वो कंडीशन में क्यों नहीं। तो क्या ट्रूथ है, क्या है जो मैं ढूंढ रहा हूं, क्या है जो ठीक नहीं था, क्या है जो ठीक हुआ। एलोपैथिक साइंस वर्क्स ऑन फेलियर्स। I say share your success stories in homeopathy and unfold that success in such a way that it can be replicated in number of cases. Are you with me? Yes. We don't have to blindly follow that system. That system is based on what is not working, and they are not going to reach to the end. I tell you, that is not the way you go and search truth. Suddenly you will find in homeopathy कुछ है जो मुझे मालूम नहीं था अभी तक। लोग ठीक हो रहे होम्योपैथी से, इसमें कोई सवाल नहीं। मिक्सचर देने के बाद भी लोग ठीक हो रहे हैं। मुझे मिक्सचर के सामने भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सामने प्रॉब्लम है अगर आपने ढूंढा नहीं कि क्यों ठीक हुआ, ऐसा क्या था जिसने इस आदमी को ठीक किया। 10 में से 2 आदमी भी ठीक हो गए ना, होम्योपैथी चलती रहेगी, क्योंकि कोई ठीक करने वाला है ही नहीं। तो 2 ठीक हुआ, लाइनें लगती रहेगी आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो 8 नहीं ठीक हो रहे हो, 2 में से क्या सीखा मैंने जो 8 में लगा सकता हूं। और कुछ साइंस है वो 8 में, हम बोलते हैं मार्शल आर्ट। सर ने बहुत अच्छे से बताया मार्शल आर्ट, भाई आर्ट कुछ उसमें भी एक साइंस है, लेकिन साइंस इतना ब्यूटीफुली प्रकट होता है कि लोग उसको आर्टिस्टिक फॉर्म में देख सकते हैं। हर आर्ट के पीछे साइंस है और साइंस के पीछे एक आर्ट है। So it is very important to find out what is that step, and I tell you, I show you few cases जिसमें वो थोड़ा अनफोल्डिंग करने की कोशिश की मैंने, और हम कुछ सीखेंगे। कोई मेथड है, कोई टेक्निक है जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। और 2 कंपोनेंट में मैं बात करूंगा जो मैं हमेशा करता आया। एक होम्योपैथी क्या करती है, और दूसरा केस दिखाऊंगा जिसमें होम्योपैथ क्या करता है। यू कैनॉट बी पैसिव इन योर क्योर। अगर पिंच ऑफ सॉल्ट फेंका गया और कुछ कर सकता है, तो आप नहीं कर सकते हो सर, आप में पावर नहीं। वो सॉल्ट के इतने से बूंद में ताकत तुम्हारे में नहीं है, आप में भी वो पावर है, लेकिन वो हम देखने की कोशिश नहीं। So I'll show you case, मैं ढूंढने गया था कोई होम्योपैथिक दवा, लेकिन सच का खाली फेस करते गया ट्रूथ को, पेशेंट ठीक हो गया। और बैड केस मीन दुनिया के सब लोगों ने उससे हाथ धो दिया हुआ केस, दवा दिया बिना ठीक हो गया, और मुझे उसका सामना करना है। उसका मतलब होम्योपैथी प्लेसेबो नहीं है, गलत रास्ते पे मत जाना। होम्योपैथ वर्क कर रहा है। And I tell you, Oxford University का research, they said we are very sure that homeopath works. We have yet to find homeopathy works. होम्योपैथ क्या करता है जाने अनजाने में, वो भी देख लो। और टू माय स्टूडेंट आई टेल यू, खाली सच के रास्ते में चलने से आधे रिजल्ट आ जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं चलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जंग दिखा दूंगा कि खाली 12 दवा आती है तो भी प्रैक्टिस चलती है। 60 दवा, मुझे बहुत सारी 1000 दवा नहीं आती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कहने में। मेरी प्रैक्टिस में रिजल्ट है बहुत लोगों के जैसा, सिर्फ मुझे 60 दवा आती है। 60 को कैसे यूज कर रहा हूँ, 60 में से एक सिविलियम मैं कैसे ढूंढता हूँ, उसकी मदद से बी पे कैसे जाता हूँ, सी पे कैसे जाता हूँ, और रास्ता कैसे ढूंढता हूँ। सो देयर इज नो एंड टू सिविलियम, और वो रिसर्च के अगेंस्ट नहीं, वो बहुत जरूरी है। नया एक्सपीरियंस, नया नॉलेज, नो कॉम्बिनेशन। अभी पे इतने एलोपैथिक ड्रग्स है, उसको पोटेंटाइज करके यूज करो, इट्स अ न्यू साइंस। इतने माइक्रो डोज में अगर पार्किंसन की दवा काम कर सकती है, तो उसको पोटेंटाइज करके देखो, नया रिसर्च हुआ है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो पार्किंसन ड्रग, इफ समवन टेक्स फॉर 6 pills a day, they develop psychosis, paranoia. Means that drug has power to cure paranoia. Using, I'm not against it, but वो आएगा तभी होम्योपैथी। सॉरी,
60 दवा है मेरे पास, बक्से में दवा नहीं, ट्राइबल विलेज में जाता था तो भी मेरे बक्से में कम से कम दवा रहती थी, और जब भी दवा मिलती भी थी तो कभी यूज नहीं की ऐसी ओपियम, जैसे चिपक के सफेद हो गई, पीली हो गई थी, काम में आएगी कि नहीं डाउटफुल था। कोमा में पेशेंट था, उसको वो चम्मच के पीछे के हिस्से से निकाल के माँ को गंगा जल बना के दिया कि अभी देते रहे, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मरा हुआ रहेगा, तो थोड़ा ये चिपका हुआ ओपियम तो दे दे। और वो पेशेंट जब भी नेक्स्ट विजिट में जीवित होता है, और 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में खाली 14 रुपए की दवा में जब भी वो बाहर निकलता है, 2 रुपीज अ वीक लेता था आज से 25 साल पहले, और कोमा का पेशेंट 14 रुपए में जब भी बाहर निकला तो भी ऑर्गेनोन और मटेरिया मेडिका लेके डांस करने का मन। कौन बोलता है कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम कैन नॉट बी पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ? बस यही सवाल पूछते रहा, and train more than 100 health workers to do 80% job which is required for homeopaths to do, data collection, finding out, and lay people in lay language used to come and do better case taking than our so-called homeopath who are talking medical terminology. वो पेशेंट खड़ा खड़ा ही स्टूल करता है, बैठता नहीं है, ऐसा लिख के आते और दवा सट करके क्लियर होनी चाहिए, क्या हो। So it is very, very important that we are not only caretaker of homeopathy. It can go down to even community health workers. They will give you so much of 80% work which is required to be done. And you can see 100 patients comfortably in spite of the method which I will show you. 100 पेशेंट देख सकता हूँ और फिर भी मैं मेथड दिखाऊंगा जो एक पेशेंट के साथ में 1.5 घंटा निकालता, 1 घंटा निकालता, because every case I give them as a surgical time. I don't consider myself medical man. I call myself surgeon, homeopathic surgeon. क्यों? Why? Literally मेरे क्लिनिक के बाद लाल बत्ती लगाने वाला हूँ, तो ऑपरेशन चालू है अंदर खत्म। Because most vulnerable time, that person is telling me his or her painful story. उस समय कोई आके बोला सर इसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, मेरा मोबाइल पे पैक बज रहा है, घर से फोन आ रहा है, इधर से फोन आ रहा है, नहीं चलता है, सब साइड पर। आज भगवान आए मेरे घर, उसको कैसे अटेंड करना है, कितना टाइम देना है, किस तरह से देखना है, किस तरह से सोचना है, और 2 से तीसरा केस नया लेता ही नहीं हूं मैं, वो मेरी कैपेसिटी के बाहर है नया। इसलिए मैंने एक फौज बनाई है, 8-8, 10-10 असिस्टेंट डॉक्टर्स, they see, they are happy, I am happy, everyone sees case in detail, and at a time हम 10 नया केस देखते हैं in a day, and 100 follow-ups. Unless and until you design, devise, define what is needed in homeopathic practice will not flourish. क्यों किया ये? Because उसने कुछ लिखा था, वो जरा लगाया, नहीं हो रहा।